Hello, class 7th. Welcoming you all back to your chapter that is your large number around us. We have done three topics till now and three episodes or three lectures we have covered till now. This will be our episode number 4, which we will be doing today. Okay, and we will be covering some more topics today. Obviously, we have completed lakh varieties, we have completed the getting feel around it is one number large, reading and writing, land of tens we have completed. We have also completed the of crores and crores. Now we'll be going to start with 1.4 that is exact and approximate values. So guys, exact and approximate values are the values which are approximately that same value or not. Like we're going to go through this. 1 lakh people visited the book fair. Oh, so many people. If I had not gone, they would have written 99,999 people visited the book fair last week. So now यहाँ पे क्या बात हो रही है? So Esto said that 1 lakh people, 1 lakh guys, 1 lakh. The zeros are not proper, but 1 lakh it is. 1 lakh people visited. But if you haven't gone, then it would be minus one, right? Obviously, so then it would be 900. Sorry, 99,999. What do you think of this conversation? Have you read or heard such headlines or statements? Very often, right? Exact numbers are not required, just an approximation, है ना? क्योंकि कोई exact number बेटा कोई नहीं बोलेगा. Like you don't have exact number like कि 75,699. No, it will be approximate, or it will be not approximate. Like it will be not exact. It will be approximate, like 75. Right now, like it this. Very often exact number are not required, just an approximation is sufficient because it is good to look around or pick this thing, right? According to this, like this number will not look good so much than the equivalent, like approximate. That is why approximation is needed. For example, according to 2011 census, the population of Chintamani town is 76,068. Instead, saying the population is about 75,000 big, 70,000 is enough to give an idea how big the quantity is, right? Puppy, call and check if Tufan Express is on time. तो बप्पी ने यहाँ पे क्या किया? बप्पी को बोला कि कॉल करो एंड ये बताओ. अब इसने क्या किया? पुलिस का नंबर देखिए 100 एंड 112 है, फायर का 101, एम्बुलेंस का 102, डिजास्टर मैनेजमेंट का 108, नेशनल इमरजेंसी नंबर 112 एंड रेलवे इंक्वायरी 139. अब इसने जो भी नंबर लगाया, who came? Police came. So किसने बोला what number did you call? I called the rounded off number. Of course, my teacher told us that efficient people deal with rounded off numbers. तो अब यहाँ पे इसने जो भी नंबर था उसका अप्रोक्सीमेट कर दिया 100. तो बेटा देखो, हर एक जगह पे भी अगर आप अप्रोक्सीमेट लेके चलो, दिस इज नॉट व्हाट यू गेट इट, है ना? राउंड अप आपको हर एक जगह पे, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. यू हैव टू चेक अप द सिचुएशंस, राइट? यहाँ पे देखो लिखा भी है, देयर आर सिचुएशंस where it makes sense to round up a number. Rounding up is when the approximate number is more than the actual number. तो बेटा जब राउंडेड अप होता है तो उसमें आपका क्या होता है? जो नंबर होता है, it is more than, approximate number is more than the actual number. ये होता है राउंड ऑफ में. For example, if a school has 732 people including the students and teachers with staff, the principal might order 750 sweets instead of 700, है ना? तो अगर इसका मैं राउंड ऑफ करूंगा तो I won't be saying कि भैया 700 sweets. Obviously, क्यों? क्योंकि अगर मैं 700 sweets मंगाऊंगा तो बहुत लोगों को कम पड़ जाएंगी. Around 32 people will have no sweets and everything. So that's why it is good कि मैं ऐसे मंगाऊं. ओके, क्यों? क्योंकि ज्यादा पढ़ना ठीक है देन कम पढ़ना, राइट? नेक्स्ट इज, दैट इज व्हाई इट इज व्हिच आई सेड राउंडेड अप. अप मींस उससे अप्रोक्सीमेट नंबर से ऊपर. देयर आर सिचुएशंस वेयर इट इज बेटर टू राउंड डाउन. अब यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसको हमने एग्जैक्ट या एक्चुअल वैल्यू से नीचे रखा है. For example, if the cost of an item is 470, the shopkeeper may say that cost is around 450 instead of saying it is around 500. तो बेटा ये बात होती है कि जो शॉपकीपर है, अगर एक आइटम की कॉस्ट है 470, तो शॉपकीपर ये भी कह सकता है कि उसकी जो कॉस्ट है वो 450 है.
इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो 500 है। बात समझ आई? राइट। तो इसी के साथ आगे हम चलते हैं, मतलब कि राउंड डाउन वगैरह आपका इन सारी चीजों में हो जाता है। राउंड अप आपका किन चीजों में होता है, यू हैव टू डील लाइक यू हैव टू गो थ्रू दैट situations. Next is this: think and share situation where it is approximate to round up, round down. Either rounding up or rounding down is okay, and when exact numbers are needed. तो बेटा इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे एक पेज पे। I'll have this thing maybe। ओके, यहाँ पे आपका सॉल्यूशंस भी हैं बेटा। तो यहाँ पे आपकी कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं, मैं आई थॉट कि आई शुड गो थ्रू दैट ओनली, आपको भी थोड़ा वैसे ही आइडिया पड़ेगा। हाँ, तो देखो, या थिंक एंड शेयर सिचुएशंस वेयर इट इज अप्रोक्सीमेट टू राउंड अप। तो हम राउंड अप कब करते हैं? बाइंग फूड और फ्रूट्स फॉर अ ग्रुप। तो हम उस ग्रुप के पीपल का राउंड अप कर देते हैं कि हाँ इतने लोगों के लिए मंगा लो। राउंड डाउन कब करते हैं? एस्टिमेटिंग द टाइम रिमेनिंग टू लीव फॉर स्कूल, कैचिंग द स्कूल बस, कि भैया इतना टाइम बच गया है, हमें जल्दी जाना चाहिए। उसमें हम कर देंगे राउंड डाउन कि लेट्स से इफ इट इज लाइक 30 मिनट्स और 35 मिनट्स, वी कैन से कि हाँ ओके you can leave like if it says like 32 minutes, तो हम उसको राउंड डाउन करके 30 मिनट्स बोल दें। डिस्टेंस एस्टिमेशन में, या कि जो चीज़ें हैं डिस्टेंस एस्टिमेशन, उसमें हम राउंड डाउन या राउंड अप कर सकते हैं। और कब हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए? जब हम मनी, स्पेशली बेटा बैंक में डील कर रहे हैं, तब हमें उस हिसाब से बेटा डील करना है। ऐसी सिचुएशंस में हमें वी हैव डोंट हैव टू डू दीज ऑल थिंग्स, हमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बेटे उसके साथ लेके चलनी चाहिए। एम आई राइट? तो इसी के साथ हम चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट इज कि आपका एग्जैक्ट वैल्यू वगैरह के बाद में आपका बेटा आता है ये, देखेंगे आप लोग किधर है। हाँ, आता है आपका नियरेस्ट नेबर्स। नियरेस्ट नेबर्स क्या होता है? विद लार्ज नंबर इट इज यूजफुल टू नो द नियरेस्ट थाउजेंड, लाख और करोड़। तो बेटा जब आप राउंड अप वगैरह करते हो तो आपको नियरेस्ट नंबर जानना जरूरी होता है कि विच इज द विच इज द लाइक नियरेस्ट थाउजेंड, लाख और करोड़, क्योंकि दैट इज द गुड थिंग टू नो, बिकॉज उसमें फिर जीरो जीरो ऐड होके द नंबर विल लुक गुड और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उस हिसाब से नियरेस्ट नेबर आपको जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द नियरेस्ट नेबर ऑफ द नंबर, ये कितना है? 6 करोड़, राइट। 6 करोड़ 72 लाख 85,183 आर शून्य बिलो। तो नियरेस्ट थाउजेंड इसका हो जाएगा 6 लाख, सॉरी 6 करोड़ 72,000, सॉरी आई एम सो सॉरी 6 लाख 72, ओहो 6 करोड़ है बेटा ये, डोंट गेट कंफ्यूज लाइक मी। 6 करोड़ 72 लाख 85,000। नियरेस्ट 10,000 क्या हो जाएगा? 85 है तो हम 9। जब बेटा देखो 5 होता है, 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम उससे ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं। और जब 5 से, यहाँ पे इक्वल्स टू डाल देता हूं मैं, और जब 5 से छोटा नंबर होता है, ओहो ये तो बड़ा बन जाएगा ऐसा, और जब 5 से छोटा नंबर होता है तो हम उसमें राउंड डाउन करते हैं। अब यहाँ पे 5 ही था तो हमने राउंड अप कर लिया। नियरेस्ट 10,000, 6 करोड़ 72 लाख 90,000। नियरेस्ट लाख, अब यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो लाख का था 2.9 बन जाया था, तो इसका हमने राउंड अप कर लिया 6 करोड़ 73 लाख। अब यहाँ पे देखेंगे नियरेस्ट 10 लाख, तो यहाँ पे सीधा सीधा है तो 6 करोड़ 70 लाख, राइट। तो यहाँ पे भी आपका क्या बन जाता है? आपका यहाँ पे भी 6 7 बन जाता है। तो नियरेस्ट करोड़ आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 करोड़। एम आई राइट? तो यहाँ पे आप 7 करोड़, आपका वो भी प्राइज मनी भी रहती है, कौन बनेगा करोड़पति में? जस्ट अ फैक्ट आई एम स्टेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नंबर्स फॉर दीज। तो आप किसके लिए 5 नियरेस्ट नंबर आपको वी हैव टू राइट। अब हम राइट करा लिखते हैं इसके बारे में भी बच्चे। देखो, पहला तो आपका हम 1000 का बनाते हैं, ठीक है, 1000 करोड़ इन सब का। सो फर्स्ट मेरा बेटा आपका बन जाएगा 3, इधर मैं आपको एक बार शो ही कर देता हूँ, आई वोंट राइट द प्रॉपर आंसर, ओके। 87,69,957, ठीक है मेरा बेटा। अब इसमें जब हम 1000 को देखेंगे ना मेरे बेटा, 1000 में आपका आ रहा है 99, 1000 में आपका क्या आ रहा है? 99। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे क्या,
9969 था, तो इसलिए हमने इसको 70 लिख दिया। दिस विल बी योर नियरेस्ट 1000। अब ये नियरेस्ट 1000 है, नियरेस्ट 10,000 भी बेटा यही है, क्योंकि इट इज एंड प्रॉपर वैल्यू 70 आ रहा है आपका। ठीक है, बट अगर आप नियरेस्ट लाख देखोगे तो 7.7, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे 88 3 करोड़ 88 लाख, ये आपका हो जाएगा लाख। अगर अब हम 10 लाख की बात करेंगे, तो यहाँ पे बेटा कुछ नहीं, 90 लाख डाल देंगे, 3 करोड़ 90 लाख। अब बेटा जब हम करेंगे बात नियरेस्ट करोड़ की, तो बेटा यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हम सीधा आगे डाल देंगे 4। कहाँ ये रहा 4। तो ये बन जाएगा आपका बेटा 4 करोड़। एम आई राइट? तो वही बात है, यू हैव टू जस्ट, आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स। आगे हम देखेंगे, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ इसका आंसर, आई एम जस्ट शोइंग यू, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। इससे आपको बेटा राउंड ऑफ कहाँ पे इसका क्या करना चाहिए एंड एवरीथिंग, यू कैन गेट द पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट मैं इस नंबर को लिखता हूँ यहाँ पे बेटा 29 5 32 481। ओके, सो नियरेस्ट 1000 आपका कितना हो जाएगा, इसको जीरो जीरो कर देंगे हम पहले, और ये हो जाएगा 2000। एम आई राइट? 2000 हो जाएगा। देन मैंने क्या इसमें गलत किया है? नहीं नहीं, यहाँ पे 9.9 था, दैट्स व्हाई वी इंक्रीज, तो यहाँ पे बेटा 2.4 है, तो हम इसको इतना ही रखेंगे। ठीक है, एम आई क्लियर? 2 ही रखेंगे। आगे हम देखेंगे 10,000 में तो 32 है, तो हम इसको भी बेटा 30 रख लेंगे, इसको हम इसमें कम कर रहे हैं। देन हम इसमें क्या करेंगे, देन हम इसमें करेंगे नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट करेंगे लाख। अब नियरेस्ट 53 है, तो 5 लाख को हम बना देंगे 5 लाख। ओके, 29 5 लाख। आगे हम देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है 10 की वैल्यू में, बट 5 है, तो क्या हम इसको 10 लाख कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, तो 10 लाख कर दो। ठीक है, अब हम करेंगे बेटा हमारी करोड़ की। करोड़ में बेटा यहाँ पे 1 है, तो हम इसको इतना में ही छोड़ देंगे, इसको हम इतने में ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया 29 करोड़ 10 लाख। ठीक है मेरा बेटा, तो जैसे हमने इसमें थोड़ा बहुत राउंड अप किया था, हमने इसमें थोड़ा बहुत राउंड डाउन किया, सो यू कैन गेट द डिफरेंस, क्योंकि बेटा इसमें जो वैल्यूज थी ऑलमोस्ट सारी 5 से अबव थी या 5 थी। इसमें जो वैल्यू है बेटा, उसमें ऑलमोस्ट तो नहीं कहूंगा ऐसे, बिकॉज एक वैल्यू जो है 5 की वो ही कम थी, वो ही ज्यादा थी, बाकी जितनी भी थी इट वाज लेस, तो हमने इसमें ज्यादा चेंज करा नहीं, सो वी डिडंट चेंज मच। तो हम इसको 29 लाख 10 को कर देंगे 20, क्योंकि 29, क्योंकि बेटा ये कम हो गया, राइट? यू गेट माई पीओवी। सो तो 10 लाख था, तो इससे 29 हो जाएगा, बट अगर यहाँ पे 10 की जगह 90 होता, सो आई वुड हैव डन 30 करोड़। ओके, तो इसी के साथ ये समझने वाली चीज है, दिस इज नॉट द आंसर प्रॉपर, आंसर विल बी 29 ओनली। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि अगर 10 की जगह होता तो। एम आई क्लियर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट आई डू 1 मिनट। यस, I have a number for which I'll just delete this, alright? I have a number for which all 5 nearest neighbors are 5 crore. Okay, what could be the number? We how many such numbers are there? So Roxy and Ace were estimating the value of simple expressions. So they said what is? They said कि 5 करोड़ के आसपास का वैल्यू हमें चाहिए, जिसका राउंड ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ये है, 5 नियरेस्ट नेबर्स का यही है। So they're doing what? 4,63,128 plus 4,19,682. So Roxy ने कहा the sum is near 8 lakh and is more than 8 lakh. And Istu ने कहा the sum is near 9 lakh and is less than 9 lakh. So क्या है? Are these estimates correct? Whose estimate is closer to the sum? यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं इन्होंने। Okay. Will the sum be greater than 850 or less than 85? Okay, okay, A, B, C. Okay.
So यहाँ पे हमसे चीजें पूछी हैं, yes या no, are these some accurate, estimates accurate, whose estimate is accurate. तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत है, राइट. सो जब हम 4603128 प्लस 419682 करते हैं तो आपका कितना आता है, इट इज अराउंड 882. It is around 882. Oh, sorry, 2. Oh, 882, and it is 8, I guess, yeah, 8110. तो मैंने कैलकुलेटर से करा कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ मैं आपको. तो इसका जो सम है मेरा बेटा यहाँ पे ये है. क्या है इसको दिक्कत, हमें तो बताओ क्या दिक्कत है. हाँ, ये. So whose estimate is correct and whose estimate is this thing? So the sum is near S2 का सही है, क्योंकि सम बेटा ये होगा 9 लाख के ही पास में, क्योंकि it is 88, right? 8,82. So that's why. So S2 estimate is closer. Okay. Will the sum be greater than 850 or less than? So it will be greater, greater than. Will the sum be greater than 883 128 or less than 883 128? So it is less than 883, less than 883 128. एग्जैक्ट वैल्यू क्या है बेटा आपकी इसकी? एग्जैक्ट वैल्यू इज दिस. इसको ही हम उठा के यहाँ पे डाल देंगे. ठीक है, एम आई क्लियर. इसको मैं थोड़ा ब्लूइश में कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि भैया हाँ आंसर लिखा है. ये सारे सेम कलर हो गया ना मेरा बेटा, दैट्स व्हाट. ठीक है. नाउ 1483 128. सो नेक्स्ट नंबर क्या है? 1483, सॉरी 63 128 माइनस 490 020. So it is 973108. ठीक है. The difference is near 10,000 and less than 10,000. Yes, Roxy सही है. The difference is no, 10,000 से नीचे ही है, but it is near to 10. So it will be, are these estimate correct? तो इसमें किसका करेक्ट है? Roxy. Roxy Roxy's estimate is correct. Will the difference be greater than 950 or less than? So it will be greater than. Greater than. Am I right? क्योंकि बेटा इतना है. Will the difference be greater than 963 or less than? So it will be greater. और ये रहा इसका आंसर. Okay, it is not coming here. So I'll just write over here then. 973 108. Okay, ask the student questions. Okay, so you can do like this. ठीक है, कि इसका कितना सम होगा. This is not the part you have to
थिंक अबाउट, ओके, हाँ हाँ। सो इतना आप लोगों ने समझ लिया। ये होता है बेटा कि आप इसको कैसे नियरेस्ट डियरेस्ट में कर सकते हो। इसका ऐसे सम पूछ सकते हैं आपसे पेपर में, एंड दिस विल बी हेल्पफुल। ये एग्जांपल जो है टोटल आपका ऐसे क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एक और सब टॉपिक है, दैट इज पॉपुलेशन ऑफ सिटीज। यहाँ पे बेटा पॉपुलेशन दे रखी है 2011 की एंड 2001 की, ऑफ 10 इयर्स ऑफ गैप। ठीक है। मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, वडोदरा, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, इंदौर, थाने, भोपाल, विशाखापट्टनम, पिंपरी चिंचवड, and Patna. From the information given in the table above, answer the following by approximation. What is the general observation about this data? Share it with the class. तो बेटा जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है? जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि ये 10 इयर्स के गैप में 20 इसका सिटीज का पॉपुलेशन हमको दे रखा है। ठीक है ना। पॉपुलेशन गैप यहाँ पे कितना है? 10 इयर्स का, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ पे थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है, किसी की थोड़ी बहुत डिक्रीज हुई है। इंक्रीज ही हुई है वैसे तो सबकी, देखा जाए तो थोड़ी बहुत, एक्सेप्ट कोलकाता। कोलकाता की थोड़ी सी डिक्रीज डिक्रीज हुई है। ओके, बाकी तो सबकी इंक्रीज ही हुई है। यस, बाकी सबकी इंक्रीज हुई है मेरे बेटा। सो इसमें आप क्या जनरल ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो? जनरल ऑब्जर्वेशन इज इट इज ऑफ 10 इयर्स ऑफ 10 इयर्स ऑफ गैप। The above info is 10 years of gap. आपकी कोई और भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है बेटा, तो वो भी आप लिख सकते हो जरूर इसमें। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेबल? तो इसका अप्रोप्रिएट टाइटल क्या है? पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, या पॉपुलेशन ऑफ सब इंडियन सिटीज, पॉपुलेशन डिफरेंस ऑफ इंडियन सिटीज, लिख सकते हैं। पॉपुलेशन डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंस ऑफ इंडियन cities from 2001 and 2011। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे दिख रहा है। How much is the population of Pune in 2011? Approximately by how much it has it increased compared to 2001? तो 2001 में देखो पुणे की इन्होंने पूछा है ना, आई गेस। ये पूना तो यहाँ पे नहीं मिला है। आई थॉट इट इज पूना, इट इज पटना। पूना ये रहा बेटा। पूना की पहली थी 25, 38, 473, जिसका अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो इट विल बी 25,000, सॉरी 25 लाख। एंड अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे मेरे बेटा, देन इट इज आल्सो 31 लाख। सो 31 लाख इधर है, 31 इधर है। तो या तो बेटा इन्होंने पूछा है अप्रोक्सीमेटली बाय हाउ मच हैज इट इंक्रीज। तो बेटा इसके लिए देखो आप, यू कैन डू इट बाय एनी अप्रोक्सीमेशन। आप लैक्स की अप्रोक्सीमेशन भी करवा सकते हो, 10 लैक्स की भी। ठीक है, दोनों में ही इंक्रीज हुई है। अब मेरा बेटा कैसे हम देख सकते हैं? सो आई जस्ट राइट इट ओवर हेयर। अगर तो हम 100 थाउजेंड्स के वो कराते हैं ऑब्जर्वेशन, तो बेटा पुणे जो है, पुणे में 2011 में पहले थे इतने। तो इसको अगर हम 1000 में करते हैं, यानी कि 8 का करते हैं, सो इट विल बी 25, 33 ओनली। ओह, ये मैंने सूरत का लिख दिया, आई एम सो सॉरी। 24 है कि 25 है? ओ, मैंने सूरत का आधा लिखा, आधा उसका लिख दिया। दिस इज 38 है ना। और 38 का बेटा 8 ही रहेगा क्या? क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या दिक्कत है देख सकते हो आप लोग। 25, 38, 473। अब यहाँ पे 84 आ रहा है, तो 84 है तो 8 पे ही रुक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका हो गया। ठीक है, इसके अलावा आगे अगर हम 1000 का 10,000 से करें, तो 10,000 का कैसे हो जाएगा? इससे पहले ना हम इसकी अप्रोक्सीमेट की जगह पहले हम जो इसकी रियल वैल्यू है वो भी लिख देते हैं। ठीक है, वो कितनी है? इट इज 473।
25, 38, और इसकी और अगर हम एब्जॉर्ब अब वो करेंगे तो इट विल बी 40 लाख, राइट, 40 लाख। एंड अगर हम और करेंगे सो इट विल बी 25, sorry, 25 lakh 40,000, then it is 25 lakh only। एंड अगर हम और करते हैं so it will be 30 लाख। ठीक है, ये आपका इतना है। अगर अब हम इसी के बाद में इफ आई पुट हेयर ये 2001 की है, और इफ आई पुट 2011, तो 2011 की कितनी है बेटा? 31, 15, 431। ठीक है, यही थी, हाँ पुणे की यही थी। अगर हम इसकी अब 1000 की करें अप्रोक्सीमेशन तो कितनी हो जाएगी? 31, 15, ठीक है, 31 लाख 15,000। इसके बाद और करेंगे अगर हम तो 31 लाख 20,000। और अगर हम और करेंगे तो क्या हो जाएगी? देखो 5000 की करी हमने, फिर 1000 का 10,000 करी तो इट विल बी 20। ठीक है, तो 20 के बाद बेटा हम करेंगे किसकी? लाख की करेंगे क्या? बिल्कुल जी, लाख की करेंगे। अब हम 31 है 2 है तो 31 लाख ही रहेगा। फिर आगे जब हम इसकी करेंगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 30 लाख ही हो जाएगा। 30 लाख ही हो जाएगा क्योंकि 1 था। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस बेटा अगर हम देखें तो सबसे स्टार्टिंग में मेरा बेटा सबसे स्टार्टिंग में पहला तो था 31, 15, 431 25, 38, 473। तो कितना था? 576,958, 576,958, 576,958। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में जब हम अप्रोक्सीमेट नहीं करते तो इतनी वैल्यू आई डिफरेंस। वी शुड नो दिस इज वेल, क्वेश्चन में शायद नहीं पूछा बट देन ऑल्सो वी शुड नो। ठीक है, देन है बेटा 31 लाख 15,000 का माइनस किससे हो रहा है? 25 लाख 38,000 के साथ। सो इट इज 5,77,000, 5,77,000। 31 2 minus 25 4 580, 580 बन जाएगी इसकी। आगे अगर हम देखेंगे तो 580 के बाद कितनी बच जाएगी बेटा? 580 के बाद आपकी रह जाएगी कितनी? कैन एनीबॉडी टेल मी? सो बेटा 31 माइनस 25 कितना ही रह गया है इसमें, तो ये आपका बन जाएगा 6 लाख। और बेटा अगर इसमें पूछेंगे तो बेटा इसमें तो जीरो बनेगी। तो ये आपकी सारी अप्रोक्सीमेशन है बाय 1000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। फिर डिफरेंस क्या आता है? सबसे हाईएस्ट डिफरेंस आ रहा है किससे? इट इज फ्रॉम 10 लाख, एंड सबसे लोएस्ट आ रहा है करोड़ के अप्रोक्सीमेशन से। एम आई क्लियर? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। हाँ, ये भी क्लियर कर दिया। विच सिटी पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 211 एंड 211? तो 200 से इसमें कितनी सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है? तो अगर आप देखोगे 19 to 24, हम देखेंगे बेटा लाख से, लाख से। ठीक है, थोड़ा हम लाख से देखेंगे। सो इसमें बेटा अप्रोक्सीमेटली कितनी? 5 5 की इंक्रीज हुई है। इसमें कितनी इंक्रीज हुई है? इसमें हुई है बेटा, चलो हम एक काम करते हैं, साथ साथ ना कुछ कैलकुलेटर या कुछ खोल ही लेता हूँ मैं।
की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज हम इसकी क्या करेंगे, ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे। 2000 इसमें थी 124, 42, 373। तो बेटा अप्रोक्सीमेटली 5 ही बढ़ी है। इसमें कितनी बढ़ी है, 98 था, 110 हो गया, तो कितनी बढ़ गई, 12, है ना। इट इज इंक्रीज बाय 12, so it has increased by 12 lakh, right, 12 lakh, yes 12 lakh। it is increased by almost 84 minus 43, बच्चा कितना हो गया, 84 minus 43 is 41 लाख से बड़ी है, तो it is 41 lakh बच्चा, highest score right now, 6836, 6836, 6836 बच्चा, और 42, तो 44 ही अभी हाईएस्ट है ना। हम इसका मार्क कर लेते हैं बेटा, 44 कहाँ पे है, ये वाली थी 44 वाली, बेंगलुरु, है ना। 43 था तो 43 ही बेटा, अच्छा 84 था तो प्लस 40, आई वॉज टेलिंग दिस करेक्ट, मैं गलत बोल दिया, तो 41 ही अभी हाईएस्ट था। फिर अहमदाबाद का तो कम ही है, 55 35 20 है। चेन्नई का कम है। कोलकाता का तो डिक्रीज हुआ है। सूरत का बेटा 44 24 20 ही है। बैंग वडोदरा का 35 16 है। तो बेटा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 ही हो गया, 19 या 19 है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद तो ये 7 हुआ। ये बेटा हो गया मेरा 7 का ही, 7 लाख का ही हो गया। ये 2 लाख का हो गया। ये कितने का, ये 4 लाख का हो गया। ये कितने का हो गया, ये हो गया 5 का। ये हो गया 6 का, ये हो गया 3 का, ये हो गया 4 का, ये हो गया 7 6। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज किस पे हुई है, इस पे हुई है, किस पे हुई है, इस पे हुई है। तो दिस इज योर द हाईएस्ट वन, दैट इज बेंगलुरु। यहाँ पे आप लोग आंसर लिख देंगे इसका, आंसर इज बेंगलुरु, बेंगलुरु। आर देयर सिटीज हुज पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट डबल, विच आर दे। तो बेटा विच आर दे, वो तो बेटा पॉपुलेशन बेंगलुरु की ही है, बेंगलुरु की ही है। क्यों, क्योंकि डबल जो इसकी बेंगलुरु वाज वन ऑफ इट, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा डबल हुई है 36 68। शायद इसकी भी बेटा हो सकती है, क्योंकि ये आपका 32 का ऑलमोस्ट था, तो हम हैदराबाद भी लिख सकते हैं इसमें बच्चे। हम इसमें हैदराबाद भी लिख सकते हैं क्या, क्यों नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें बेटा एक अगर आप देखोगे थोड़ा दिमाग लगा के, तो जो हैदराबाद है उसकी भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतनी ही रही है, तो वी कैन राइट हैदराबाद एज वेल। ठीक है, यहाँ पे है हैदराबाद। आगे देखते हैं, हैदराबाद से भी आगे। अगर यहाँ पूछेगा ना कितनी, तो इट वॉज 41 लाख अप्रोक्सीमेट। ठीक है, हैदराबाद से आगे देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे तो ठीक है। सूरत बेटा, सूरत की भी है और वडोदरा की भी है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सूरत और वडोदरा की भी इतनी ही है। तो इट इज इंक्रीजिंग बाय 24 है, 20 से इंक्रीज हो गई। 16 17 मान लो, इट वाज इंक्रीज बाय 9, सो 19, सो ये भी हो गई। सो ये क्या है, ये है सूरत एंड वडोदरा। यहाँ पे भी वो लिख देते हैं, सूरत एंड वडोदरा। ओके, I have written spelling wrong. हाँ, A की वो नहीं थी। By what number should we multiply Patna's population to get the number in close to that of Mumbai? तो मुंबई तक लाने के लिए हमें कितनी करनी पड़ेगी, मुंबई की कितनी है, 1 लाख 124 42, 124 42 को हम मान लेते हैं इसी में, तो 124, 1 करोड़ 24, 1 करोड़ 24, और पटना की है इतने, सो 1 करोड़ 24 लाख
एंड इसकी कितनी है पटना की 16, तो हम 17 मान लेते हैं कि इट इज 84 बेटा, 17 लाख। तो 124 है और 17 है, तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 124 को अगर हम 17 से देखें, सो 17 का बेटा अगर हम करेंगे 17 का, तो 17 का 7 से अगर हम करेंगे ना भाग बेटा, इंटू करेंगे मतलब, तो बेटा आपका आएगा 9, 109, तो उसके आसपास में है। सो इट इज बेटा अप्रोक्सीमेटली आपका मेरे हिसाब से 7.29 समथिंग होगा, 29 और 3, आई राइट एज एन और ऑप्शन एज वेल 7.3, तो ये आपका हो सकता है इतना हो। ठीक है, तो 119 जो कि आपका 7.29 या 7.3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेगा ताकि हम मुंबई जितनी पहुंच पाए। ठीक है मेरे बेटा, इसी के साथ ये वाला टॉपिक तो होता है बेटा खत्म, विच वॉज योर एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट नंबर्स। ये थोड़ा ज्यादा लेंदी टॉपिक हो गया, आई एम सो सॉरी, थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया होगा इसमें, इट हैज ऑलरेडी क्रॉस 30 minutes, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। सो आई विल जस्ट कवर द नेक्स्ट चैप्टर वेरी सून, आई एम सो सॉरी बच्चे, वॉज अ लेंदी वीडियो, I'll complete it as soon as possible। तो इसी के साथ बच्चे एपिसोड नंबर 4 वन ऑफ द longest episode बन गए यहाँ पे, so I'm so sorry for that, but I'll do take account of this and make the shorter videos in future। For this video this much only, will meet you soon।